Hello students. In a previous video, we already covered a few topics, that is section number 149 in a part 1, 150 in a part 3, 151 also in a part 3 video. Now we are starting with this, that is the section number 152 and 160, appointment of a director and right of a person other than the retiring director to stand for a directorship. Without wasting our time, let's start. Okay. So first of all, we should start with the section number 152. Appointment of the director. So in this, we are talking about two things. That is the key appointment of a first director and then subsequent director. So there is a two things, that is the first director, and then thereafter we will discuss about the subsequent director. So let's start with the first director, that is appointment of a first director, where अगर no provision is made in the article of a company for the appointment of first director, then जो subscriber होंगे memorandum के, who are the individuals, shall be deemed to be the first director of the company until the director are duly appointed under section 152 subsection 1. मतलब अगर मान लो कंपनी के आर्टिकल में ऑलरेडी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है कि हाँ हम ये डायरेक्टर्स इस तरीके से अपॉइंट करेंगे, सो वो फॉलो करा जाएगा। अगर मान लो कंपनी के आर्टिकल में कोई भी प्रोविजन लिखा ही नहीं है, तो जो सब्सक्राइबर होंगे मेमोरेंडम के, जो इंडिविजुअल्स होंगे, हम उनको डायरेक्टर डीम्ड कर लेंगे कब तक, जब तक डायरेक्टर अपॉइंट्स नहीं हो जाते। ओके, बट इन केस ऑफ अ 1% कंपनी, दैट इज द ओपीसी, individual being the member shall be deemed to be its first director until the director are duly appointed. इट इज हैपन सेम इन केस ऑफ द 1% कंपनी। अगर कोई डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हुआ है, तो वी विल डीम्ड की जो फर्स्ट जो इंडिविजुअल है बीइंग अ मेंबर shall be deemed to be the first director of a company until the director are appointed. Okay, so this is all about the first director. Let's continue with the subsequent director. Appointment of a subsequent director. Just a minute. Okay, let's start. Appointment of a subsequent director. Save as otherwise expressly provided in this act, every director shall be appointed by a company in a general meeting. Means कंपनी का हर डायरेक्टर अपॉइंट करा जाएगा कंपनी की जनरल मीटिंग में. So this is all about for a subsequent director. मतलब एट द जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स जो होंगे कंपनी के, वो इकट्ठे होंगे और वो डिसीजंस लेंगे. Every company shall be appointed, every director shall be appointed by the company in a general meeting, except where the Companies Act expressly provide some other procedure for the appointment of a company. Means अगर जब तक कंपनीज एक्ट में कोई अदर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं करा जाता फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, जब तक कंपनी के जो मतलब जो ऑनर्स होते हैं, दैट इज द शेयर होल्डर, दे विल डिसाइड एंड अपॉइंट द डायरेक्टर्स इन अ रिस्पेक्टिव मैनर. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर अ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द अदर रिक्वायरमेंट्स. और डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो कि मैंडेटरी डायरेक्टर के पास होना चाहिए, दैट इज फॉर व्हाट. लेट्स स्टार्ट. दैट इज कि कंपनी के पास अलॉट दिन नंबर होना चाहिए. दैट इज द मैंडेटरी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. नहीं है तो अप्लाई करवाओ डायरेक्टर का डिन, फिर उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट होगी. बट बिफोर द अपॉइंटमेंट ही शुड होल्ड द डिन नंबर. This is mandatory requirement. So allotment of a DIN number means a person shall be appointed as a company only if he has been allotted a DIN under section 154 में allotment बताया है कि डायरेक्टर का जो DIN नंबर है कैसे अपॉइंट होगा. और फिर एनी अदर नंबर एज में भी प्रेस्क्राइब जो कि सेक्शन 153 में करा गया है. मतलब हम डायरेक्ट डिन नंबर के सब्स्टिट्यूट में कोई और नंबर भी हम लोग उसको एज अ ट्रीट करेंगे, उस वो स्पेसिफाई करा गया है हमारा सेक्शन 153 में. लेट्स स्टार्ट विद प्रोवाइडिंग ऑफ अ डिन एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर. जो डायरेक्टर प्रपोज करा गया है अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर के लिए, तो एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय अ कंपनी इन अ जनरल मीटिंग
shall furnish his DIN number, such other number as may be prescribed, as I told you earlier. ठीक है. And further, he shall also furnish a declaration that he is not disqualified under section 164. मतलब कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, उसे ये अपॉइंटमेंट से पहले ये डिक्लेरेशन फर्निश करनी पड़ेगी. ओके, गॉट माय पॉइंट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी फर्दर थिंग्स. रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, मतलब रिटन कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. अब एज अ डायरेक्टर प्रोसीड करने के लिए उससे हम रिटन कंसेंट लेंगे कि हाँ, अ पर्सन जो अपॉइंट करा गया एज अ डायरेक्टर, जब तक वो काम नहीं करेगा एज अ डायरेक्टर, अनलेस ही गिव्स हिज रिटन कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज अ डायरेक्टर. एंड जो कंसेंट है कंपनी को देनी पड़ेगी ऑन या फिर बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर. फॉर्म नंबर कौन सा है? DIR 2. मतलब जो डायरेक्टर है वो कंपनी को देगा DIR 2 में, और फिर कंपनी फाइल करेगी कंसेंट with the registrar within the 30 days of such appointment in DIR 12. मतलब कि पहले तो डायरेक्टर देगा अपनी अपॉइंटमेंट से पहले इसको कंपनी को DIR 2 में, फिर कंपनी देगी इसको ROC को विद इन 30 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन DIR 12 में, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब अगर मान लो अपॉइंटमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी. अगर मान लो in case an independent director is appointed in a general meeting, so explanatory statement for such appointment annexed to such notice for the general meeting shall include the statement in the opinion of a board and fulfill all the other conditions. मतलब अगर मान लो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है, आई अर्लियर ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ सेक्शन 149 के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करके देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया explanatory statement only in case of an independent director. If you are appointing any other director other than the independent director, then there is no need to attach any kind of the explanatory statement. Now there is a few exemptions we should consider first. So what? Just a minute. That is non-applicability. मतलब section 152 subsection 5 की non-applicability, मतलब this point is only for the explanatory statement. मैंने जो ऊपर पढ़ाया है वो सब एप्लीकेबल होगा, बट ये एग्जाम्पशन दी गई है ओनली फॉर सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 152. तो क्या एग्जाम्पशन दी गई है, अब हम इसको स्टडी करेंगे. सेक्शन 152 रिगार्डिंग द फर्निशिंग ऑफ कंसेंट किस किस पर अप्लीकेबल नहीं होगी इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंट कर रही है अपने डायरेक्टर का, तो वहां पर उसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है. डजंट मैटर वो मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है. सेम एज विद सेक्शन 8 कंपनी, बट ये इन दोनों केस में एग्जाम्पशन तभी अप्लाई होगी दे डिड नॉट कॉन्ट्रावेंशन या फिर एग्जाम्पशन इज एप्लीकेबल, उन्होंने कोई डिफॉल्ट ना करा हो इन फाइलिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 या फिर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार. अगर मान लो गवर्नमेंट कंपनी ने ब्लैक डिफॉल्ट करा है फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन उसको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा. और या फिर अगर सेक्शन 8 कंपनी है उसने डिफॉल्ट करा है तो उसे भी ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, उसे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 152. Let's start with the further. Retirement of director by the rotation, that is the major part. And students, pay attention more, this is the most important part you should study. Okay, let's start with the retirement of direction by the rotation. Before start with this, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे. अगर होंगे से यस, सो व्हाई? प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स एंड पॉज द वीडियो नाउ. ठीक है, okay, let's start with the section number 152 subsection 6, which is talking about retirement of direction by rotation, appointment of a rotational director and the number of directors liable to retire by rotation. अब रोटेशन किस किस पे एप्लीकेबल होगा? अगर आर्टिकल में लिखा है कि सारे डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन एवरी जनरल मीटिंग में होगा, तो हम आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर साल हर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट बाय रोटेशन करते रहेंगे. ठीक
ठीक है। लेकिन अगर मान लो नहीं लिखा हुआ तो क्या प्रोविजन दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में कि not less than two-third of total number of director of a public company shall be the person whose period of office is liable to retire by rotation, same as otherwise appointed by the general meeting। मतलब टू थर्ड ऑफ नंबर पर हमारा रिटायरमेंट बाय रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मतलब टू थर्ड टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के टू थर्ड का कम से कम हमें इतना रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन करना पड़ेगा। अब किस किस पर कौन कौन नॉन रोटेशनल हो जाएंगे, जो बाकी के बचेंगे। मतलब रिमेनिंग, मतलब टू थर्ड तो हो गया, अब यहाँ पे रिटायरमेंट बाय डायरेक्टर बाय रोटेशन, अब जो वन थर्ड बचे वो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर हो गए। तो रिमेनिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ सच कंपनी शैल बी इन डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू, ये हो गया प्रोविजन। अब आ जाते हैं रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ रोटेशनल। अब कब उनका रोटेशनल कब होगा, सी लेट्स स्टार्ट। रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ रोटेशनल डायरेक्टर at the first annual general meeting of public company, guys. Students, there is a point public company, you have to keep in your mind there is a provision which is related to the public company held next after the date of the general meeting at which first director are appointed। मतलब पहली जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो उसके बाद जो जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, उस मीटिंग में हमारे डायरेक्टर्स को रोटेट किया जाएगा। ठीक है। वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी रिटायर लाइबल टू रिटायर बाय डायरेक्टर बाय रोटेशन इफ देयर इज अ नंबर नाइदर मल्टीपल हो गया नियरेस्ट टू, हमेशा नेक्स्ट नंबर होगा। सपोज दैट हमने वन थर्ड किया, ठीक है, वन थर्ड जो डायरेक्टर होंगे वो रिटायर बाय रोटेशन होंगे। अब पहले ऊपर आप कंफ्यूज हो रहोगे, पहले तो सी स्टूडेंट जो बताया गया था, पहले तो रोटेशनल डायरेक्टर्स निकाले। मतलब जो टोटल सपोज दैट 10 है नंबर, उसका टू थर्ड करो, जो टू थर्ड नंबर आएंगे वो हो गए रोटेशनल डायरेक्टर। अब उनमें से वन थर्ड जो डायरेक्टर होंगे हम उनको रिटायर करेंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। तो अब आ जाते हैं कि रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी पे तब लगेगा जब उसकी लाइक सब्सिडरी, मतलब जब वो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। सपोज दैट एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सब्सिडरी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, बट स्टिल देयर इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। ठीक है। बट प्राइवेट कंपनी पे लगता नहीं है, यहाँ पे देखो अगली लाइन लिखी हुई है। In other words, private limited company which is not a subsidiary of a public company is exempted। मतलब उस पे नहीं लगेंगे प्रोविजन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशनल डायरेक्टर। अब देखो एक एग्जांपल दिखा दो सो दैट यू विल बी क्लियर ऑल विद द प्रोविजन। एक मिनट, मैं एक एग्जांपल दिखा दूं सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। अब पहले बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे। तो देयर इज अ वन थिंग, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे रोटेशन एप्लीकेबल नहीं होगी, वो नॉन रोटेशनल है। और वेयर द अपॉइंटेड हो गया हमारा, ये सब प्रोविजन हो गया फर्दर, ये सब हो गया। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट लायबल, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ये सब हो गए। और इसके अलावा भी जो डायरेक्टर्स हैं जिनपे, जैसे नॉमिनी डायरेक्टर जो नॉमिनेटेड करा गया है किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस पर हमारे रोटेशनल मतलब नहीं लगेंगे। या नॉमिनी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, उस पर भी रोटेशन नहीं लगेगी। मतलब एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर नहीं एप्लीकेबल होगा, नॉमिनी हो गए जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन ने करा है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अपॉइंटमेंट करा है डायरेक्टर का, उस पर भी हमारे वो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। ये एग्जांपल करें, अब आ जाते हैं यहाँ पे। वन थर्ड मैंने बता ही दिया, टोटल जो हमने रोटेशनल निकाले हैं उसका वन थर्ड कर दो। दिस इज द डायरेक्टर जो कि जिनका रिटायरमेंट हमें करना पड़ेगा। अब देखो ये कंपनी है, कंपनी में क्या है 12 डायरेक्टर है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, यू विल बी क्लियर विद ऑल दी प्रोसीजर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं, बिकॉज इसका रिवीजन। दिस इज द एग्जांपल, ये ठीक है। एक कंपनी है जिसमें 6 डायरेक्टर है। ठीक है, टोटल 6, इसमें ना ही इंडिपेंडेंट है, ना ही कोई नॉमिनी डायरेक्टर है, ना ही और कोई डायरेक्टर है जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करा है। कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं और 6 के 6 एलिजिबल है। अब इसका पहले तो टू थर्ड कर दो, और अगर पॉइंट्स में फिगर आ रही है उसको नेक्स्ट वन में राउंड ऑफ करना है, ना कि प्रीवियस में। डजंट मैटर टू
0.23 आ रहा है, 0.10 आ रहा है, यू हैव टू गो नेक्स्ट। ठीक है, 4 नंबर आ गया। अब इसका 1/3 करो, मतलब नियरेस्ट 1/3, तो ये आ गया 1.33, या फिर नियरेस्ट टू दी हो गया हमारा 1। क्योंकि अगर ये 1.4 होता ना तो हम इसे 2 में कन्वर्ट करते, लेकिन 1.3 है तो हम इसे 1 में ही राउंड ऑफ करेंगे। तो देयर इज अ वन डायरेक्टर जिसको रिटायरमेंट करना पड़ेगा हमें जनरल मीटिंग में, एजीएम में, तो ये होगा पोजीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। कंपनी में 60 डायरेक्टर है, पहले हम 2/3 निकालेंगे, ये कि यहाँ पे 4.7 है तो हमें नेक्स्ट में उसे 5 में करना पड़ेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायरेक्टर 5 को हम 1/3 करेंगे, 1.6 है तो इसको हम 2 में राउंड ऑफ करेंगे, तो 2 डायरेक्टर पर हम लोग उसको रिटायरमेंट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, सपोज अब आपस में इनमें लड़ाई होगी कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो सॉल्व आउट करने के देयर इज वन थिंग, जो लंबे समय से टिक रहा था उसका रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। डायरेक्टर हु एक्चुअली रिटायर बाय रोटेशन कौन होगा, जो कि लॉन्गेस्ट इन ऑफिस होगा। ठीक है, अगर एक टाइम पे 2 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है सेम डे पर, तो अब उनमें क्या होगा, म्यूचुअली डिसाइड करा जाएगा, हाँ भाई कौन, बाय द लॉट से कर लो या उनमें आपस में बातचीत से हो जाएगी, हाँ भाई तू चला जाए मैं चला जाऊं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब आ जाओ उसकी उसकी जगह पर, अब रोटेशनल डायरेक्टर की जगह पर किसकी मतलब वैकेंसी को हम लोग फिल करेंगे। तो उसी जनरल मीटिंग में जिसमें डायरेक्टर का रिटायरमेंट हुआ था, कंपनी फुलफिल करेगी वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग, या तो उस जगह पे रिटायरिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है, या फिर एनी अदर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, अब आ जाते हैं रीअपॉइंटमेंट में। जो डायरेक्टर रिटायर हो गया, तो टू फिल दैट वैकेंसी कंपनी जो है मे रीअपॉइंट कर सकती है रिटायरिंग डायरेक्टर को एट द जनरल मीटिंग में। इफ रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट रीअपॉइंटेड, तो कंपनी में अपॉइंट द सम अदर पर्सन एट हिज प्लेस, बट इन दिस केस ये कम हमें फिर फ्रेश डायरेक्टर स्टाइल पूरा कैंडिडेट सेक्शन 160 को फुल्ली फॉलो करना पड़ेगा। अब जो डायरेक्टर रिटायर हुआ है वो कंपनी में रीअपॉइंट भी हो सकता है एट द सेम मीटिंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये नॉन रोटेशनल हुआ है। अब आ जाते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट किसको माना जाए। ठीक है, क्लियर करते हैं। अब आ जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर द सन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर मान लो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं होता तो हम डीम्ड कर लेंगे कि हाँ डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट हो चुका है, रिटायरिंग डायरेक्टर को डीम्ड रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। मान लो मीटिंग एडजर्न हो गई, इफ द वैकेंसी ऑफ अ रिटायरिंग डायरेक्टर फिलअप नहीं हुई और मीटिंग जो है हमारी उसमें भी रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टिल द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस। इन दिस केस अगर मान लो नेशनल हॉलीडे है तो हम उसे टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग डे जो होगा सेम प्लेस पर हम लोग मीटिंग एड करेंगे। लेकिन जब तक कोई अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक हम किसको मानेंगे, रिटायरिंग डायरेक्टर को ही डीम्ड डायरेक्टर मानेंगे। अब आ जाओ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट किस केस में माना जाएगा, इफ द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी रिजॉल्व नहीं हुई, तो रिटायरिंग डायरेक्टर जो है हमारा शैल बी डीम्ड टू बी रिअपॉइंट। सपोज दैट आज मीटिंग हुई, रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए, क्या मीटिंग जो है हमारी एडजर्न हो गई। मीटिंग एडजर्न होने के बाद सपोज दैट उस एडजर्न मीटिंग में भी कुछ सोल्यूशन नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको भी हम लोग रीअपॉइंटेड मान लेंगे। अब कुछ एक्सेप्शन है, रीअपॉइंटमेंट कब नहीं माना जाएगा, उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड एज रीअपॉइंटेड। तो कौन कौन सी पॉइंट है, अगर मान लो मीटिंग में या फिर पिछली मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करा गया है कि जो इस डायरेक्टर का मतलब रिजोल्यूशन जो है हमारा फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू द मीटिंग एंड लॉस्ट, मतलब कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसको हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं मानेंगे कब, अगर मीटिंग में या फिर पिछली मीटिंग में, कोई भी प्रीवियस मीटिंग में रिजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट जो था ऑफ सच डायरेक्टर पुट करा गया मीटिंग में लेकिन वो लॉस भी हो गया। तो इस केस में क्या है, हम मान लेंगे कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका डीम्ड अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर अब इसके अलावा अगर रिटायरिंग डायरेक्टर बाय नोटिस इन राइटिंग में एड्रेस कर दे कंपनी को या फिर उनके पीओडी को कि मैं एलिजिबल, मैं नहीं चाहता कि मैं कंपनी को मतलब रीअपॉइंटमेंट होना, तो वो उस केस में डीम्ड रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है अंडर सेक्शन 164, तो कंपनी
वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। अगर कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इस पर्पज के लिए फाइल करा गया है कि हाँ अब इसका रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन उसका हम लोग डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं करना, तो उस केस में क्या होगा, ये उसका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू kept in your mind. Okay, let's start with the another, that is the last point कि if section 152 applicable हो गया, जहां पर सिंगल रिजोल्यूशन से दो डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट हुआ था without first moving a proposal which was required to be agreed at the and no vote cast against it, तो इस केस में क्या होगा, void माना जाएगा, और उस केस में भी हम लोग रिटायरिंग डायरेक्टर का रिअपॉइंटमेंट नहीं मानेंगे। ओके, अब आ जाते हैं कि किस पर सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 मतलब रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के प्रोविजन नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट कंपनी जो कि लिस्टेड ना हो, ठीक है, और इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करती हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मोर देन मतलब अल्टीमेटली 51% शेयर जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रही हो, या फिर सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, उस पर भी नहीं लगेंगे। और कंडीशन ये तब एप्लीकेबल होगी एग्जामेशन की, तब उन्होंने डिफॉल्ट ना करो इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 92 and 137 and annual return under section 90. So this is all about the retirement of director by rotation. So we are like concluding here. All the best, students. Do study hard, and yes, of course, study मैथ से रिवाइज करोगे, देयर इज अ हाई चांसेस, इनके क्वेश्चन सॉल्व करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सेक्शंस को याद करो। आपकी ये फाइनल में हो, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना, तो आई से एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छे से हर चीज करो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक।